Hello everyone. Today I'm going to tell you about how to start the minimum level learning syllabus for class 10 mathematics for both standard and basic. So let us start with the first chapter they have to start. The students have to start statistics, means full chapter, and under this chapter what the student have to do, start with the NCERT textbook with all examples and exercise questions as per revised syllabus. As per revised syllabus means the last exercise is already deleted since last 3 years, so that you can leave. And next one, my minimum level study material is available uh, in my website blog for both standard and basic. I will provide the link also in my description box. After that, practice questions are also available in my blog in class 10th link. That link also I will give in the description box. And after practice questions I am giving in two sets. फर्स्ट राउंड जो था उसमें सेट वन है और सेकेंड राउंड जो है सेट टू है. सो जो बच्चे हैं वो पहले एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे, फिर मिनिमम लेवल लर्निंग स्टडी मटेरियल से कंप्लीट करेंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन से करेंगे और सीबीएसई कुछ प्रीवियस 10 years के क्वेश्चंस भी करेंगे. सो इन दिस वे स्टैटिस्टिक्स हैव टू टेकन अप. सो इससे जो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स जो कवर होंगे लगभग 7 marks कवर होंगे. नाउ आफ्टर स्टैटिस्टिक्स they have to complete probability. Statistics और probability दोनों एक यूनिट का है, 11 marks का. So if 7 marks from statistics, so this will cover 4 marks. और ये 6+5 भी हो सकता है, बट दोनों मिला के 11 मार्क्स होगा. सो इसमें भी सारे स्टूडेंट्स को क्या क्या कंप्लीट करना है. फर्स्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज, नथिंग इज डिलीटेड इन दिस चैप्टर, एंड क्वेश्चंस फ्रॉम माय मिनिमम लेवल लर्निंग स्टडी मटेरियल, and then practice questions in two sets. Already first set is uploaded in my blog, and now recently I started a second set, and that link also I will made available in the blog. After that, some previous 10 years questions also students have to do. So in this way students will cover 11 marks. नेक्स्ट जो इजी चैप्टर है रियल नंबर्स. सो रियल नंबर्स में फर्स्ट एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज डिलीटेड है, ओनली सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज. बहुत छोटा चैप्टर है और इट विल कवर 6 marks. 6 marks मीन्स अभी 11 marks पिछले यूनिट में था प्लस 6, 17 marks कवर हो गए. सो फर्स्ट कंप्लीट द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक विथ एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज एज पर रिवाइज सिलेबस. रिवाइज सिलेबस का यहाँ कहने का मतलब है फर्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज छोड़ के. Then my questions from minimum level learning study materials. Then practice questions also, first set is available, and the second set I will start. I have just started, and statistics से मैंने start किया है, तो statistics का link मैं provide कर सकता हूँ. Then CBSE के कुछ questions. So in this way the students have to complete real numbers. I'm sure in this way they can score full 6 out of 6. So अभी तक 17 marks cover हो गए. Now the fourth one is triangles theorem. Only one theorem is there, basic proportionality theorem, और उसको बच्चे बहुत अच्छे से करेंगे. इसमें अब क्या क्या करना है, फर्स्ट तो थ्योरम करना है, सेकंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं और 1 mark क्वेश्चंस हैं, वो भी मेरे मिनिमम लेवल लर्निंग स्टडी मटेरियल में इट इज अवेलेबल. सो आफ्टर दैट practice questions are more than enough for this chapter in set 1 and set 2. Set 2 I will post later, and then CBSE previous 10 years questions. In this way the students can cover 4 marks. Actually जो ट्रायंगल का जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर है वो 6 marks का है, 6 और 7 marks का है. तो इट मे बी 8 ऑल्सो. थ्योरम ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वो 15 marks का है. तो ये मैं ऐसी एस्टिमेट अराउंड 4 marks लेके रखा हूँ. द स्टूडेंट्स कैन स्कोर 5 ऑल्सो, दे मे कैन स्कोर 6, 7, 8 ऑल्सो, बट मिनिमम 4 marks. सो अभी कितने हो गए? 11 + 6 + 4, 21 marks. So now coming to circles, full chapter students have to do, and this is of 6 marks. अब ये कम ज़्यादा हो सकता है in together with triangle chapter. इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है. सो इसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे एग्जाम्पल्स और सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे और मेरे मिनिमम लेवल स्टडी मटेरियल से करेंगे.
प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने दो सेट्स में जो मैंने बताया, फर्स्ट सेट इज ऑलरेडी अवेलेबल, सेकंड सेट में कमिंग डेज में मैं अपलोड करूंगा, और सीबीएसई के प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। सो इन दिस वे द स्टूडेंट्स विल कवर 27 मार्क्स। 27 मार्क्स, क्योंकि मैंने ट्राइंगल का 4 ही लिया है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम 27 मार्क्स। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल चैप्टर एंड 6 मार्क्स। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, राइट, और एक 1 मार्क क्वेश्चन है, और एक असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें कम से कम 6 मार्क्स में स्टूडेंट्स को 4 मार्क्स तो स्कोर करना ही है। अगर 6 भी कर लेता है, फर्स्ट सेट द टारगेट 6 मार्क्स। सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस, माई मिनिमम लेवल स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस विच इज अपलोडेड इन माई ब्लॉग, और सीबीएसई के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस करेंगे। Now these are up to here we covered 33 marks. Abhi next again we are going to start with polynomials, algebra का जो section है, polynomials full chapter, quadratic equation full chapter and arithmetic progression full chapter. So ये जो cover करेंगे 14 to 15 marks और 13 to 15 marks, और इसमें भी आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूरा अच्छे से करना है, मिनिमम लेवल स्टडी मटेरियल करना है, और मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट सेट में मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं लिया, क्योंकि सीबीएसई में सारे केस स्टडी क्वेश्चंस थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। सेकेंड सेट में जब जो सेकेंड जो रिविजन सीरीज जब मैं स्टार्ट करूँगा, तब मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को भी मैं इंक्लूड करूँगा, और सीबीएसई के कुछ प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चंस कर लेंगे। So let us see how many marks we are going to cover. 6 real numbers, triangles का theorem मैंने अभी 4 बताया था, but वो 5 marks question है, और circles का 6, probability 4, statistics 7, ये दोनों एक ही यूनिट है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट दोनों मिला के 11 रहेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6, और ये अराउंड 14 मार्क्स, और 13 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द fourth chapter, linear equation in 2 variables. So around 48 marks. That is why I have used word around, क्योंकि ये कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यूनिट वाइज वेटेज में चैप्टर्स का जो वेटेज है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, वो कम ज़्यादा हो सकता है। राइट, नाउ कम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, फिर रियल नंबर्स, फिर ट्राइंगल्स, फिर उसके बाद सर्कल्स, फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पॉलिनोमियल्स, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और लास्ट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से हो गए हैं, उसके बाद मेरे मिनिमम लेवल लर्निंग स्टडी मटेरियल में लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो छूटे हुए चैप्टर्स के, तो रिमेनिंग चैप्टर्स टारगेट्स। तो ऑल रिमेडियल स्टूडेंट्स हैव टू कंप्लीट द अबोव चैप्टर्स, मीन जो चैप्टर्स मैंने अभी बताया, थोरोली विथ 100% परफेक्शन। अब उसमें भी सेलेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे, एंड देन दे कैन ऑल्सो कंसंट्रेट द बिलो टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम। जैसे लीनियर इक्वेशन में ग्राफ क्वेश्चंस हो गए, कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे मिनिमम लेवल स्टडी मटेरियल में है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक यूनिट में एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे, और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के भी कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे। सो इन दिस वे इफ यू प्रिपेयर, आई एम श्योर यू विल स्कोर मोर देन 50 मार्क्स, बट अच्छे से करना है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।